حق تعالیٰ نے لیا جملہ نبیوں سے یہ کام ہو جو محروم اس سے ہے ایمان ہے اس کا ناتمام اور جو دشمن ہو تو اس کے کفر میں پھر کیا کلام. یہ وہ کلام جس کے ذریعے سے ہم اپنی ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بنا رہے تھے. میرے اور آپ کے درمیان میں ایک عظیم ترین ہستی استاد العلامہ شاہین شاہ خطابت تشریف فرما ہے اور حضرت قبلہ کو کسی اور پروگرام کے لیے بھی پہنچنا ہے. تو سب سے پہلے تو میں حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت علماء نظامیہ آرگنائزیشن کے اس خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کانفرنس کے لیے ہمیں عنایت فرمایا ہے. آرگنائزیشن آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے، استقبال کرتی ہے، خیر مقدم کرتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے استاد محترم حضرت شاہین شاہ خطابت کو صحت و عافیت، تندرستی، توانائی، طاقت و قوت کے ساتھ دراز عمر کا معاملہ فرمائے اور آپ کا علمی فیضان یوں ہی جاری و ساری رہے. بلا کسی تاخیر اس شعر کے ساتھ میں دعوت خطاب دینے کی عزت حاصل کر رہا ہوں. حضرت شیخ الاسلام کی زبان میں اگر کہوں نہ خنجر پاس ہے ان کے نہ وہ شمشیر رکھتے ہیں، نہ خنجر پاس ہے ان کے نہ وہ شمشیر رکھتے ہیں، مگر ابرو کی جنبش میں عجب تاثیر رکھتے ہیں. نہیں رہتا ہے دل قبضے میں ان کی ہم کلامی سے، نہیں معلوم باتوں میں وہ کیا تسخیر رکھتے ہیں. حضرت سید شاہ عزیز اللہ قادری صاحب قبلہ سابق شیخ المعقولات جامع نظامیہ سے میں ادباً درخواست کرتا ہوں آج کی اس کانفرنس سے خطاب فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء جامعہ نظامیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حضرت تقدس مآب علامہ مفتی حافظ محمد حنیف قادری قبلہ، خلیفہ حضرت صدر الشیوخ سیدی سید طاہر رضوی قادری قبلہ علیہ رحمت و رضوان دامت برکاتہم العالیہ، و جمیع عظیم المرتبت جلیل القدر علماء کرام وارثین علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دامت برکاتہم العالیہ، قابل اکرام جمیع بزرگان ملت، سامعین کرام حفظہم اللہ تعالی. یہ انتہائی مبارک محفل ہے. اس میں ہمارے علماء کرام یہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اسلام کے عظیم المرتبت ہستیوں کی پاکیزہ سیرت سے باخبر کرائیں، ان کی زندگیوں سے باخبر ہوتے ہوئے جو ہمارے لیے قرآن پاک، احادیث شریفہ، حبیب پاک کی سیرت طیبہ، اسلام، ایمان کی جو کچھ شان عظمتیں ہیں، ہم اپنے ان عظیم ہستیوں کی زندگیوں کو دیکھ کر ہم اس کی حقیقی عظمت کو سمجھ سکتے اسلام کی، اور ان کی زندگیوں کو نمونہ بنا کر ہم اپنی زندگیوں کو اللہ پاک اور اس کے رسول کے احکام کے موافق ڈھال سکتے ہیں. اس جذبے کے تحت علماء کرام نے امت کے ان طلباء کرام کو جو
आगे बढ़ने का जज्बा रखते हैं, उन्हें मज़ीद शौक़ दिलाकर उनको इस्लाम की अज़मतों की तरफ आगे बढ़ाने के लिए, इस्लाम के अज़ीमुल मर्तबत पेशवाओं के ज़िंदगियों से बाखबर करने के लिए खुलफ़ाए राशिदीन जो हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल शरीफ के बाद उम्मत के सबसे बेहतरीन रहनुमा और हादी है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी मुबारक ही में इशारतन इनकी तरफ इशारा फरमाया था कि ये मेरे बाद खलीफा होंगे। ऐसे कई वाक़यात गुज़रे हैं जिसमें इस तरफ इशारा मिलता है। वो हबीब पाक के पाकीज़ा क़ानून के उम्मत तक पहुँचाने के सबसे पहले हादी है। उम्मत की हिफाजत के लिए उन्होंने जो कोशिशें की है वो क़यामत तक के लिए सीरत की किताबों में और अहादीस में साबित रहेंगी। तो इन सीरत के उन्वान से मुकाबला इन पाकीज़ा उलमाए किराम ने रखा। इनमें कामयाब होने वाले तुलबा के लिए इनामात रखे हैं। इस तरह तुलबा में एक जज्बा पैदा होता है कि अपने सरदारों की, अपने हबीब पाक के जो पाकीज़ा खुलफ़ा और आपके सच्चे मुत्तबईन थे उनकी ज़िंदगी मुबारक जानने की कोशिश करें, उसको समझें, याद करें, उम्मत तक पहुंचाने का जज्बा हो। इस अच्छे मक़ासिद के तहत ये मुकाबले इन पाकीज़ा उलमाए किराम ने रखे हैं। जो तुलबा इसमें हिस्सा लिए हैं वो सब काबिल मुबारकबाद हैं, बल्कि इसमें हिस्सा लेना ख़ुद सबसे बड़ी कामयाबी है। अब इसके बाद ये इनाम, ये तरीक़ा चला आ रहा है कि आगे बढ़ने के जज्बे पैदा करने के लिए इनामात दिए जाते हैं। वो एक मज़ीद अल्लाह की तरफ से अता है, लेकिन हम तो कहते हैं इसमें हिस्सा लेना ख़ुद बड़ी कामयाबी है। और ऐसे तुलबा आगे चलकर ख़ुद भी किताबों का मुताला करने, उससे पाकीज़ा हस्तियों की ज़िंदगियों को समझने की कोशिश करते रहेंगे, फिर उम्मत तक उसको पहुंचा सकेंगे। क्योंकि जब भी तकरीर का मिजाज बनेगा, मुकाबले के ज़रिए हो किसी तरीक़े, जब ये जज्बा बनेगा तो जो कुछ सीखे हैं उसको उम्मत तक पहुंचाने का तरीक़ा आ जाएगा। आसानी से उम्मत को अपने पाकीज़ा शरीयत मुतहरा के क़ानून समझा सकेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, हमें अज़ीमुल मर्तबत उलमाए किराम जलवा फरमा है, उनकी आप प्यारी प्यारी नसीहत सुनेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा खुलफ़ा राशिदीन के बारे में मुख्तसर ज़िक्र करके अपनी बात को समेट लेता हूँ। और कामयाब तुलबा के लिए भी मुबारकबादी है कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके कामयाबी हासिल की है, और उन तमाम तुलबा के लिए मुबारकबादी है जो हिम्मत करके मुकाबले में हिस्सा लिए। इन्होंने बेहतरीन तौर पर अपने मुताले का जो कुछ माहसल था उसको ज़ाहिर कर सके हैं। अल्लाह ताला इन सब की कोशिशों को कबूल फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, खुलफ़ा राशिदीन किराम, हमारे लिए बल्कि बड़े बड़े औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन ने उनको अपने लिए नमूने ज़िंदगी बनाया है। अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम लोग मेरे खुलफ़ाए किराम की सुन्नतों को अपने दांतों से मजबूती से पकड़े रहो। ये दांतों से पकड़ने का ज़िक्र करके मजबूती से थामने की तरफ इशारा किया कि उनके ज़िंदगी बाबरकत को अपने लिए नमूना बनाएं और उनकी पाकीज़ा अहकामात, उनके बताए हुए तरीक़े पर अमल करें। ये मतलब है कि खुलफ़ा राशिदीन की सुन्नत को दांतों से मजबूती से पकड़े रहें, क्योंकि ये वो पाकीज़ा खुलफ़ा राशिदीन हैं जो हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद
उम्मत में एक इंतशार हो जाने का डर था, बल्कि जैसे हबीब पाक का विसाल हुआ अब इर्तिदाद शुरू हुआ। कोई ज़कात अदा करने से इनकार कर दिया, कोई हबीब के पास नबूवत का दावा करने लग गए। अजीब अजीब फितनों का दौर निकला। ऐसे टाइम हबीब पाक के खुलफा राशिदीन ने अपनी खिलाफत का तमाम हक़ अदा करते हुए दीन पाक को नाजुक वक्त में, जबकि ये दरारें शुरू हो गई थी, इन पाकीज़ा हस्तियों ने हिफाजत फरमाई। सुभान अल्लाह। और हमारे लिए वो पाकीज़ा इस्लाम हमारे तक पहुँचने का ज़रिया बने, ये सबसे पहले हमारे रहनुमा है। बल्कि फितने जब आगे जैसे बढ़ते गया ज़माना, फितने आगे बढ़ते ही चले गए। इसीलिए अभी सहाबाए किराम का ही ज़माना चल रहा है। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, लोगों अगर तुम्हें किसी की सुन्नत पर चलना है, जो इंतकाल कर गए उनकी सुन्नत पर चलो। इशारा सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की तरफ था। वो इंतकाल कर गए क्योंकि अब ज़िंदा लोग फितने से खाली नहीं। मतलब क्या, अब फितनों का दौर शुरू हो रहा है। अभी सहाबाए किराम का ज़माना ही था। कभी बताना कोई ज़कात का इनकार कर रहे, इस्लाम से फिर जा रहे, नबूवत का दावा का अजीब अजीब फितने। अभी सहाबा का दौर है, एक फितना खारिजी का निकला। अभी सहाबा का दौर है, खदरिया फ़िरक़े के अक़ीदे निकले। इसमें सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को आके बोले, वो फ़लाँ शख्स आपको सलाम बोल रहा, तो बोले मैं सुना हूँ वो खदरिया अक़ीदा फैला रहा है, इसलिए उसको जवाब मत दो। मतलब अभी सहाबा का ज़माना है, फ़िरक़े शुरू हो गए। कलमा पढ़ रहे हैं, कुरान को अपनाए हैं, मगर उसको सही नहीं समझकर नए नए अक़ीदे लेके चल रहे हैं। अल्लाह। तो इस तरह ये फितने बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ये खुलफा राशिदीन ने अपनी ज़िंदगियों में हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ सीखा इन्होंने, ये सबसे पहले सीखने वाले हैं, सबसे ज़्यादा सीखने वाले हैं। सुभान अल्लाह। अहादीस में भी आया है। और वो खुद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, ये तुम में इल्म में ज़्यादा है, अमल में ज़्यादा है, तकल्लुफ़ से पाक है, बेतकल्लुफ़ लोग हैं। खूबी बता रहे हैं इनकी पैरवी करने के लिए सहाबाए किराम रिज़वान। तो मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, ये हस्तियाँ खुसूसन खुलफा राशिदीन, इसके बाद सहाबाए किराम, इनमें वो अहले बैत इज़ाम भी शामिल हैं जो हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को पाए हैं। वो भी इन्हीं सहाबा में आते हैं, क्योंकि उनको अल्लाह ने प्यारे नबी के अहले बैत होने का भी शरफ़ अता फरमाया है और प्यारे नबी के सहाबी होने का भी शरफ़ अता। जब हम कहते हैं इनकी ज़िंदगियों को अपनाओ, तो इनमें वो अहले बैत किराम भी आ जाते हैं जो प्यारे नबी के ज़माने के हैं। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इनको अपनाने के लिए कहा और फरमाया कि फितने होते जाएंगे, उस वक्त तुमको जो अपनाना है मेरे तरीक़े को, मेरे सहाबाए किराम के तरीक़े को अपनाना है। मैं पहले कह दिया सहाबा में वो अहले बैत भी शामिल है, जिसमें रहनुमाई जो प्यारे नबी के ज़माने के, वो अहले बैत भी है, सहाबी भी। सैयदना हैदर कर्रार, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास, ये तमाम अहले बैत भी है, सहाबाए किराम भी हैं। तो इनकी ज़िंदगियाँ हमारे लिए मशाले राह है। प्यारे नबी कहते हैं आगे चल के मुख्तलिफ फ़िरक़े बन जाएंगे, तो या रसूलल्लाह किसको अपनाना? तो प्यारे नबी कहते हैं वो जमात को अपनाओ जो हिदायत पर होगी। फरमा मा आना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं वो तरीक़े पे रहने वाले सही होंगे। बोले सुभान अल्लाह। तो इसलिए उनकी क्या है ज़िंदगियाँ, उनके क्या तरीक़े हैं सहाबा के, वो देखना ज़रूरी है। हबीब पाक ने कहा मेरे सहाबा के तरीक़े पे जो होंगे उनके साथ तुम लोग हो जाना। इसलिए हमारे लिए सहाबाए किराम की ज़िंदगियों से वाकिफ़ होना ज़रूरी है। खुसूसन खुलफा राशिदीन इनमें भी बड़ा मुक़ाम रखते हैं, मर्तबे में भी बड़े हैं, इल्म में भी बड़े हैं,
अमल में भी बड़े हैं, अल्लाह से डरने में भी बड़े हैं। सुभान इनके औसाफ, इनके आदात हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नमूना है। इसलिए खुसूसन ये जितने औलिया अल्लाह गुजरे हैं, अहले बैत किराम गुजरे हैं, इन्हीं की जिंदगियों को अपना नमूना बनाए हैं। औलिया अल्लाह जो अहले बैत में से हो या गैर अहले बैत में से हो, इन सब औलिया अल्लाह ने खुलफा राशिदीन सहाबा किराम के जिंदगियों को नमूना बनाया है। क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, मेरे इनके तरीक़े को जो भी अपनाएगा वो हिदायत पर रहेगा। इसीलिए मुअज़्ज़ज़ साहब किराम, ये उन्वान बहुत अच्छा है कि हम हबीब पाक के पाकीदा खुलफा राशिदीन के बारे में मुताला कसरत से करें, उनकी ज़िंदगियों को समझें, उनके तरीक़ों को जानें। इबादत, ज़ुहद, तक़वा, जो आदाब एहतराम नबी के साथ वो हस्तियाँ करते थे, ताज़ीम का मामला, आपस में मोहब्बत, ये तमाम चीज़ें इनकी ज़िंदगियों में हमें मिलेगी। जितने औलिया अल्लाह इन्हीं की ज़िंदगियों को देखकर अपनाए हैं। फिर इसके साथ औलिया अल्लाह की ज़िंदगियाँ हैं जो हमारे लिए नमूना है। ये अपने बड़ों के तरीक़े को अपनाए हैं तो इनका तरीक़ा भी बड़ों का तरीक़ा है। इस तरह मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, एक उन्वान, बेहतरीन उन्वान है जो हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाने में जो सबसे आला है और सबसे पहला नमूना है वो खुलफा राशिदीन किराम है। तो उसी उन्वान से ये मुकाबला रखा गया था। जो हजरत कामयाबियाँ हासिल किए सबको मुबारकबादी है, तमाम हिस्सा लेने वालों के लिए मुबारकबादी है, इनके सरपरस्तों के लिए जो अपने शहजादागान को एक अच्छा मौका इन्होंने अता किया है कि ये अपने हबीब पाक के पाकीज़ा इस्लाम को और इस इस्लाम को अपनाने वाली अजीम तरीन हस्तियों की ज़िंदगियों को समझने का इन्हें मौका दिए। और ये ख़ास तौर पर उलमाए किराम काबिल मुबारकबाद हैं जो उम्मत में कि इनक़लाब देखना चाहते हैं, उम्मत को देखना चाहते हैं कि हबीब के बताए हुए तरीक़े पे ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह और रसूल के बताए हुए तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारें। क्योंकि अल्लाह इस दुनिया में भेजा ही है ताकि हम अल्लाह और उसके रसूल की बताए हुए तरीक़े पर ज़िंदगी गुजार के अल्लाह के दरबार में आए। इसी को अल्लाह ने कामयाब करार दिया है। जो मेरे तरीक़े, मेरे अहकाम पे चले, मेरे नबी ने जो बताया उस पर अमल करे। ये दुनिया है ख़त्म हो जाने वाली है, बल्कि दुनिया कुछ सौ साल में ख़त्म हो जाएगी, पूरे लोग ही ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले तो जो बाकी हैं वो भी पूरे क़यामत तक बाकी नहीं रहते हैं। सबको थोड़ी थोड़ी ज़िंदगी दी गई है। तो जिसकी मौत होती है गोया उसके लिए हक़ में क़यामत ही है वो। अल्लाहु अकबर। तो गोया क़यामत तक सबकी ज़िंदगी नहीं है, हर एक की बाद वालों की, कुछ दिन फिर बाद वालों की, ऐसा है। तो ये ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद ख़त्म। अपन कितने भी ऐश से रहे, ऐश ख़त्म, मौत होते। जितनी मुसीबत में रहे, मुसीबत ख़त्म। अब वो आने वाली ज़िंदगी हम अल्लाह रसूल की मर्ज़ी के मुआफ़िक़ चल के करें, हमेशा की राहत की ज़िंदगी, हमेशा की है। 100-200 साल की बात नहीं, 1000 करोड़, हमेशा, खरबों साल भी नहीं, हमेशा बेहतरीन ज़िंदगी। और अपनी मर्ज़ी के मुआफ़िक़ बुरा ख़ातिमा, कुछ भी मुसीबत आ गई, अल्लाह और रसूल की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मौत आ गई, मुसीबत आई तो हमेशा की मुसीबत, बच के भागने को टाइम नहीं। तो मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, ये बात मामूली मत समझें। उलमाए किराम जिस कोशिश में लगे हुए हैं, अल्लाह पाक इनकी कोशिशों में इज़ाफ़ा अता फ़रमाए, कामयाबी दे, इन महफ़िलों को कबूल फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।